The Prime Minister Shri Narendra Modi interacted with the participants of the grand finale of Smart India Hackathon 2023 and addressed them today via video conferencing. The Prime Minister interacted with Mr. Sholkar Das and Mr. Pratik Saha from National Institute of Engineering, Mysore, Karnataka, who worked on the theme of transportation and logistics by the Ministry of Coal. They are building an T-based system of railway cargo. The Prime Minister told them that the hackathon is a learning opportunity for him too, and he is always eager to interact with the participants. Looking at the beaming faces of the participants, the Prime Minister said that the enthusiasm, willpower, and desire of nation building has become the identity of India's youth power. The team, which included students from Bangladesh, to informed the Prime Minister that they are trying to address the problem of under and overloading of railway coal wagons, which leads to losses or fines. They are using LOT and AI based technology for that. The team comprises 6 members and 3 each from Bangladesh and India. The Prime Minister impressed and confidence that effort will benefit Indian Railways, which is undergoing a transformative phase. He informed that logistics in the focus area and hoped that many more students from Bangladesh come to India in future, and mentioned that the Study in India program will help such students. The Prime Minister reiterated that the next 25 years of India Amrit Kal will be a defining period for the young investors and innovators. He underlined the common goal of a self-reliant India and stated the objective of not importing any new and being dependent on the nation. Giving the example of defense sector which is working towards self-reliance, he pointed out that the India is forced to import some defense technology. He also stressed the need of self-reliance in semiconductor and chip technology. PM Modi also highlighted India's highest aspirants in the quantum technology and hydrogen energy sector. He said that the government is giving special emphasis to all such sectors by creating a modern ecosystem of the 21st century, but the success depends on the success of the youth. नमस्ते जी. Namaskara, Pradhan Mantri ji. It is an honor and a great pleasure to present to you a solution for detecting phishing domains using artificial intelligence and machine learning, which we have done according to the problem statement provided by the NTRO. So, I am Rishabh Vishwamitra. We are from Dayanand Sagar College of Engineering, Bengaluru. These are my teammates, Ashman, Anuj, Reema, Nanjunda, and Srinidhi. I am pursuing computer science and engineering, while my teammates are pursuing electronics and telecommunication, biotechnology, and computer science respectively. So phishing attacks are the most common form of cybersecurity attacks, where a person pretends to be a trustworthy entity and tries to extract sensitive and valuable information from the user. This is not something just the common man has to deal with, but also big companies. The current existing approaches to deal with this are methods like the blacklist approach, the rule-based method, and website signature-based approach. All of these are very single-dimensional and cannot keep up with the ever-evolving phishing attacks. That is why we have combined all these 3 methods using machine learning to harness the power of AI to continually learn from the phishing attack patterns, so we are well equipped to deal with future phishing attacks. ऋषभ, आप लोग तो जानते हैं कि ये बड़ा डायनेमिक क्षेत्र है. आप एक सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये बेईमानी करने वाले लोग दूसरा रास्ता खोजेंगे. आप दूसरा रास्ते पर काम करेंगे तो तीसरा रास्ता खोलेंगे. और इसलिए ये चोर सिपाही की लड़ाई जैसा एक लगातार नए नए इनोवेशंस करने पड़ते हैं, और उसमें आप लोग काम कर रहे हैं. मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं. नई टेक्नोलॉजी के साथ हमें बहुत सतर्क रहना होता है. अगर इनका नियमों से इस्तेमाल हो तो ये बहुत उपयोगी है,
लेकिन अगर गलत तरीके से प्रयोग किया जाए तो इससे बड़ी समस्याएं हो सकती है। आप सब जनरेटिव एआई से बन रहे डीप फेक वीडियोज के बारे में जानते हैं, जो एकदम देखने वाले को एकदम असली दिखते हैं। इसलिए हमें किसी भी वीडियो या फोटो पर विश्वास करने से पहले अधिक सतर्क होने की जरूरत है। भारत एआई को लेकर एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने पर भी जोर दे रहा है और मैं मानता हूं कि ये एक ऐसा नया चुनौती है, आप जैसे नौजवान जो इसमें काम कर रहे हैं वो जरूर आगे भी काम। जय जगन्नाथ। सर नमस्ते सर। सुनाई दिया? जय जगन्नाथ। यस सर। हाँ। जय जगन्नाथ सर। बताइए। सर मैं कुछ बताऊं अपने बारे में। इससे पहले मैं आपको शुक्रिया करना चाहूँगा ये प्लेटफॉर्म हम तक पहुंचाने के लिए, जिससे हम अपने आइडियाज़ पूरे नेशंस के साथ शेयर कर सकते हैं। सर मैं सैयद सादिक हुसैन हूँ। मैं अपने कॉलेज गांधी इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर की तरफ की एक टीम, हमारी टीम आर्कस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारे टीम के मेंबर्स हैं अंकित, अध्यक्षा, दीप्ति, अनीश एंड देवाशीष। अच्छा, इस सेंटर पर टीमें बहुत से इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर काम कर रही हैं। यस सर। आप लोगों ने किन चीजों पर बल दिया है? सर हमने मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया है, स्पेशली बच्चों के मेंटल हेल्थ के ऊपर। और हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही था। मेनली बच्चों की मेंटल हेल्थ पर। यस सर। हाँ सर हमने इस मेंटल हेल्थ को, बच्चों के मेंटल हेल्थ को ट्रैक करके उसे एनालाइज करके एक सब मतलब एक ऐसे रेटिंग बनाया है जिससे कि पेरेंट्स और डॉक्टर्स को पता चले कि बच्चे के मेंटल हेल्थ किस तरह है और कुछ बुरा होने से पहले ही उन्हें सूचना मिल जाए, जैसे कि वो सही कदम उठा पाएँ। सर आपने इसके लिए एआई वगैरह का तो उपयोग किया होगा, लेकिन क्या फिजिकली इस प्रकार से बच्चों से बातचीत, उनका कोई टेस्टिंग, ये सब किया है क्या? सर हमारे जो एप्लीकेशन, जो सॉल्यूशन रहेगा उसमें पेरेंट्स से भी कुछ कुछ सवालें पूछे जाएंगे, जैसे कि बच्चों के व्यवहार, खाने पीने के तरीके, खेलने के तरीके। तो इससे क्या होगा कि बच्चों के बारे में हमें और भी जानकारी मिलेगी, जिससे हम उनके बारे में पता कर सकते हैं कि वो कैसे हैं। अच्छा, इतनी 3 बेटियां भी इसकी आपकी टीम में हैं, कोई बेटी कुछ बताना चाहेगी? नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको हम इस तरह से मतलब एक सॉल्यूशन लेके आए हैं, जैसे कि ये एक हम एआई यूज़ कर रहे हैं इस मतलब ये जो एप्लीकेशन में, और इससे हम वो जो भी मतलब वो बच्चा होगा उसको हम मतलब वो हमारा एआई जो होगा उसको यूज़ करके हम एक सेफ्टी रेटिंग जनरेट कर रहे हैं 1 से 10 के बीच। तो अगर 5 से 10 तक अगर हमारा वो रेटिंग जनरेट होता है तो हम बस पेरेंट्स को एक मतलब नोटिफिकेशन या फिर अलर्ट करेंगे कि आपका बच्चा मतलब कुछ तो मतलब उसका जो व्यवहार है उसमें कुछ तो है, तो आप ज़रा ध्यान रखिए। अगर 5 से कम है तो हम हमारे जो एप्लीकेशन रहेगा उसमें हम मेंटर सपोर्ट और जो एक्सपर्ट होते हैं वो पेरेंट्स को रिकमेंड करने वाले हैं कि आप मतलब अपने बच्चों को मतलब थोड़ा वो गाइड करेंगे। तो ये होने से मतलब काफ़ी वो पेरेंट्स को, उन बच्चों को और एक्सपर्ट्स को भी मतलब बहुत अच्छा एक ब्रिज बन जाएगी उन लोगों के बीच, तो वो उपकृत होगी इस चीज़ के बारे में। बहुत बहुत बधाई हो। आपका ये प्रॉब्लम एरिया बहुत महत्वपूर्ण है। नौजवानों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एक ऐसी समस्या बन गई है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जी शिक्षा मंत्रालय के भी ऐसी टीम्स के साथ काम करना
बहुत ज़रूरी है और ये पता लगाना चाहिए कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को अपने स्कूल और कॉलेज में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। भारत को विकसित बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत के नौजवानों का मानसिक विकास उतना ही मजबूत हो। मुझे ये जानकर भी बहुत खुशी हुई है कि आपने विकसित भारत के लिए अपने आइडियाज शेयर किए हैं। आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने भी माईगोव पर एक विशेष पोर्टल बनाया है, मेरा युवा भारत, यानी माय भारत। माय भारत नाम से एक और संगठन का निर्माण हुआ है जो देश की युवा शक्ति को दिशा देने का काम कर रहा है। आप भी इसमें